Hello friends, today we will study Flamingo Class 12th book chapter 5th Indigo written by Louis Fisher. Now let's get started. About the author, Louis Fisher, born 1896 and died 1970, was born in Philadelphia in 1896. He served as a volunteer in the British Army between 1918 to 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty of Princeton University. Indigo Lesson. The story is based on the interview taken by Louis Fisher of Mahatma Gandhi. In order to write on him, he had visited him in 1942 at his ashram Sevagram, where he was told about the Indigo movement started by Gandhiji. The story revolves around the struggle of Gandhi and other prominent leaders in order to safeguard sharecroppers from the atrocities of landlords. फ्रेंड्स, इंडिगो चैप्टर है। इंडिगो मीन्स होता है नील, और जब नील की खेती होती थी उस समय अंग्रेज़ों ने इस पे और ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, जिसके बारे में ये सारी कहानी है और कैसे इसको गांधी जी ने स्टॉप कराया था, इसकी चर्चा हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। लुइस फिशर जो राइटर हैं इस स्टोरी के, ये गांधी जी से मिले थे 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में। गांधी जी टोल्ड हिम दैट हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। गांधी जी ने उन्हें बताया था कि कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों को इंडिया से भगाया था। ही रिकॉल दैट इट इन 1917 एट द रिक्वेस्ट ऑफ Rajkumar Shukla, a sharecropper from Champaran, he visited the place. Gandhi had gone to Lucknow to attend the annual meeting of Indian National Congress in the year 1916. फ्रेंड्स, ये नाम याद रखिए, राजकुमार शुक्ला यही मेन व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी से अपनी प्रॉब्लम रखी थी कि कैसे नील की खेती पर टैक्स को बढ़ाया और गांधी जी से मदद मांगी थी। इसके लिए वो गांधी जी के साथ साथ कई जगहों पे गए, उनके साथ रैलीज़ में गए थे, क्योंकि गांधी जी के पास उस समय वो टाइम नहीं था कि वो सारे मैटर को अच्छे से समझ सके। और गांधी जी की एक आदत थी कि वो किसी भी मैटर को बहुत डीप स्टडी करके, उसको जान के समझ करके ही उस पे एक्शन लेते थे। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। Shukla told him that he had come from Champaran to seek his help in order to safeguard the interest of the sharecroppers. शुक्ला ने उनसे गांधी जी से बताया कि कैसे चंपारण में प्रॉब्लम आई है और वो अपनी प्रॉब्लम को गांधी जी के सामने रखते हैं। गांधी जी told him that he was busy, so Shukla accompanied him to various places till he consented to visit Champaran. His firm decision impressed Gandhi ji and he promised him that he would visit चंपारण। गांधी जी शुक्ला जी को बताते हैं कि कोलकाता में वो रहेंगे। एक पर्टिकुलर डेट उन्होंने बताया। उस समय शुक्ला जी कोलकाता जाते हैं और गांधी जी को वहाँ रिसीव करते हैं और उन्हें ट्रेन से पटना ले आते हैं। फिर गांधी जी वहाँ से राजेंद्र प्रसाद जी के घर जाते हैं। Lawyer Rajendra Prasad's house, and they waited for him in order to grab complete knowledge of the situation. He reached Muzaffarpur on 15th April 1917. He was welcomed by Professor J.B. Kripalani and his students. Gandhiji was surprised to see the immense support for an advocate of home rule like him. He also met some lawyers who were already handling cases of sharecroppers. As per the contract, 15% of the peasants' land holding was to be reserved for cultivation of indigo, the crop of which was given to the landlord as rent. This system was very oppressive. गांधी जी को पता चला कि किसानों की ज़मीन का 15% ज़मीन सिर्फ इंडिगो की खेती के लिए, नील की खेती के लिए रिजर्व था, जिसको न केवल किसान उगाते थे बल्कि उस क्रॉप को फिर लैंडलॉर्ड को हैंड ओवर भी कर देते थे। वाह जी वाह। Gandhiji wanted to help the sharecroppers, so he visited the British Landlord Association, but he was not given any information because he was an outsider. He then went to the commissioner of Tirhat division, who threatened Gandhi and asked him to leave Tirhat. Instead of returning, he went to Motihari. Here he started gathering complete information about the indigo contract. He was accompanied by many lawyers. One day, as he was on his way to meet a peasant
who was maltreated by the indigo planters. गांधी जी किसानों की हेल्प तो करना चाहते थे, इसके लिए वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, जो ब्रिटिश जमींदार थे, उनके पास गए और उनसे पूछा कि ये सारी क्या बातें हो रही हैं, मुझे जानकारी दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक आउटसाइडर हैं। गांधी जी को कहा कि आप एक आउटसाइडर हैं, इसलिए आपको कोई भी सूचना देने का ज़रूरत हम लोगों को नहीं लगती। उसके बाद वो कमिश्नर के पास गए और वहाँ भी उनको कहा गया कि आप इस जगह को छोड़ के जाइए। गांधी जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा और वो मोतिहारी चले गए और वहाँ से उन्होंने सारी सूचनाओं को एकत्रित करना शुरू किया कि क्या बात है, कैसे क्या स्टार्टिंग हुई। और उसके लिए उन्होंने कई लॉयर्स को अपने साथ जोड़ा, कई सारे लॉयर्स उनके साथ जुड़ गए और इस तरीके से वो धीरे धीरे हर चीज़ों को पता करने लगे। फ्रेंड्स, गांधी जी को नोटिस तक थमा दिया गया कि आप इस जगह को छोड़ के जाइए। गांधी जी रिसीव द नोटिस बट डिसऑबेड द ऑर्डर, लेकिन उन्हें इस ऑर्डर को नहीं माना। अ केस वॉज फाइल अगेंस्ट हिम, एक केस उनके अगेंस्ट में डाल दिया गया। गांधी जी के अगेंस्ट में केस हुआ। Many lawyers came to advise him, but when he stretched, they all joined his struggle and even consented to go to jail in order to help the poor peasant. कई सारे वकील आए और गांधी जी को समझाया कि इस मुद्दे से आप हट जाइए, लेकिन जब गांधी जी ने उन्हें डांट लगाई और बोला कि ये क्या तरीका है, आप लॉयर्स हैं और आप लोगों की हेल्प करने के लिए हैं, तो आप लोगों की हेल्प क्यों नहीं करते। इस तरीके से समझाने पर सारे लोग, सारे लॉयर, सारे किसान उनसे गांधी जी से जुड़ गए और उनके साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हो गए। On the day of trial, a large crowd gathered near the court. It became impossible to handle them. Gandhiji helped the officers to control the crowd. Gandhiji gave his statement that he was not a lawbreaker but disobeyed so that he could help poor peasants. जब ये सारी ट्रायल चलना स्टार्ट हुआ कोर्ट में, तब गांधी जी जब इतने सारे जनसभाओं के साथ लेकर के वहाँ इकट्ठे हुए, तो जो पुलिस थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो डर गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इतनी बड़ी क्रांति स्टार्ट होने लगी। तब उन्होंने गांधी जी से हेल्प मांगी और गांधी जी ने उनकी हेल्प करी और सारे लोगों को समझाया कि नहीं, अभी ऐसा कोई भी प्रदर्शन हमें नहीं करना है। और गांधी जी ने अंग्रेज़ों से भी कहा कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी तरीके का यहाँ पे कोई भी समस्या उत्पन्न करने का, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया जाए और देखा जाए कि हम गरीब किसानों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी खुद को एक लॉ ब्रेकर के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से बात करी। जो ब्रिटिशर्स से उनके दिमाग में बात बैठी और वो समझे कि ठीक है, हम लोगों को बात को देखना चाहिए। ही वॉज ग्रांटेड बेल एंड लेटर ऑन द केस अगेंस्ट हिम वॉज ड्रॉप। गांधी जी को बेल मिली और सारे केस को ड्रॉप कर दिया गया। गांधी जी एंड हिज एसोसिएट्स स्टार्टेड गैदरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स मिसयूज. Later, a commission was set up to look into the matter. After the inquiry was conducted, the planters were found guilty and were asked to pay back to the peasants. Expecting refusal, they offered to pay only 25% of the amount. Gandhiji accepted this too because he wanted to free the sharecroppers from the binding of the indigo कॉन्ट्रैक्ट. गांधी जी को तो ये पता था कि ये सारा जो कुछ है ये गलत हो रहा है, सो उन्होंने सारे इंफॉर्मेशन गैदर किए और उनको डीपली स्टडी किया और पाया कि जो प्लांटर्स हैं वो गलत कर रहे हैं और जो भी पैसा था उन्हें किसानों को वापस करने की बात की जाती है, लेकिन जो प्लांटर्स थे वो नहीं मानते और केवल 25% अमाउंट ही वापस करने की प्रस्ताव को रखते हैं. गांधी जी इसे स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है खेती की, इसको पहले फिनिश करना ज़रूरी है, तो इसलिए वो राज़ी होते हैं. जब ये मुद्दा ख़त्म हो गया तो गांधी जी ने उस जगह को देखा और समझा कि यहाँ तो कुछ भी बेसिक्स नीड्स जो है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं है. तो गांधी जी वहाँ रुके, उन्होंने वहाँ पे प्राइमरी स्कूलों की स्थापना करवाई. 6 स्कूल उन्होंने चंपारण में खुलवाए और इसमें वॉलंटियर्स थे महादेव देसाई, नरहरि पारिक और उनके बेटे देवदास टॉट देम. Kasturba Bai, the wife of Gandhiji, used to teach personal hygiene. Later on, with the help of a volunteer doctor, he provided medical facility to the natives of Champaran. उनकी पत्नी, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई, जो कि पर्सनल हाइजीन के बारे में नॉलेज देती थी, और फिर जब कुछ डॉक्टर्स भी आगे आए मदद करने के लिए गांधी जी की, तो वहाँ पर चंपारण में मेडिकल फैसिलिटी भी स्टार्ट कराई गई.
thus making their life a bit better. A peacemaker, Andrews wanted to volunteer Champaran Ashram, but Gandhiji refused as he wanted Indians to learn the lesson of self-reliance so that they would not depend on others. एंड्रयूस जो एक पीस मेकर थे, जो एक फॉरेनर थे, अंग्रेज़ थे, वो भी चाहते थे कि वो गांधी जी के साथ जुड़े और कुछ मदद करें, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें किसी विदेशी की मदद नहीं लेनी चाहिए, खुद के लिए खुद को ही आगे लाना चाहिए, किसी और की मदद के ऊपर हमें कोई भी काम नहीं करना है। ये रहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लोगों के साथ, लोगों के बीच में। Friends, if you like this video, do like, share, subscribe. Bye bye.